Hello guys, this is our multi-part communication MPC video part 2. In the first part, we have discussed about the uh, history of the MPC. In the first part, we have discussed these points like history of the MPC. Okay, then what is the MPC communication and MPC within a practical example. Then we will discuss about the Yao based protocol. Now, today we are discussing about the some of the type of the protocols like uh, BMR protocol and many more. So let's start our video. In this, what is the BMR protocol? The full name of the BMR is Beaver Mikali Rogaway. The Beaver Mikali Rogaway BMR protocol after Yao's protocol. Yao's protocol is the two-party base. Means as we discussed in the last video, Yao is for the two-party computation, where the PMR is the multi-party computation. So after the uh, Yao's protocol, and then BMR protocol was proposed. Means जब याओ प्रोटोकॉल डिस्कवर्ड हो गया था उसके बाद हमने किसका डिस्कवर किया था बीएमआर प्रोटोकॉल का किया द सेवरल एसएमसी प्रोटोकॉल अपीयर्ड गोल्ड रिच मिकाली ई विटरसन and Ben Gowards Widerson GW GMW and BZW who and Chow Carpio Dag Dam Guard and all of these protocols have a number of the round linears in the depth of the circuit C computing BMR protocols मीन्स जो ये जो प्रोटोकॉल दे रखे हैं बी GMW BGW एंड CCD these जो ये प्रोटोकॉल्स थे इनकी मतलब ये लिंक थे BMR प्रोटोकॉल के साथ ठीक है रन्स इन ए कांस्टेंट नंबर ऑफ द राउंड जो बीएमआर प्रोटोकॉल था वो हमारे पास एन नंबर्स के लिए मल्टी पार्टी के लिए किया गया था जबकि हमने जो याओज पढ़ा था याओज प्रोटोकॉल पढ़ा था वो हमारे पास टू पार्टी लाइक उसके अंदर सिर्फ टू पार्टी थी लेकिन बीएमआर प्रोटोकॉल के अंदर मल्टी पार्टी थी ओके then we will come to our next slide that is protocols protocols होते क्या हैं what are the protocols they are the major difference between the protocol proposed of the two party and the multi party communication also often the social purpose protocol of importance is specialized protocol that deactivates the generic ones has to divide वोटिंग ओकेशंस पेमेंट्स मीन्स हमारे पास जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो हमने टू पीसी और मल्टी पीसी दो के बारे में पढ़ा था ठीक है मेनली जो एमपीसी के अंदर आते हैं वो दो ही आते हैं एक आता है टू पीसी एक आता है मल्टी पीसी तो इनके अंदर हमारे पास बहुत सारे डिफरेंस हैं ऑल्सो फंस द पर्पज protocol to importance of the special protocol specialized protocol that deviates from the generic ones मीन्स कि हमने दोनों का यूज अलग अलग बताया कि पहले वाला प्रोटोकॉल है जैसे कि 2PC है वो दो पार्टी के लिए था लेकिन जो हमारे पास MPC है सॉरी हाँ MPC है या फिर आप बोलो तो याओस बेस्ड प्रोटोकॉल है ये हमारे पास क्या थे ये हमारे पास मल्टी पार्टी के ऊपर काम करते थे जबकि हमारे पास 2PC क्या था सिर्फ दो उसके लिए था टू पार्टी बेस्ड था टू पार्टी कंपटीशन क्या होते हैं टू पार्टी सेटिंग्स इज ए particularly interesting not only for the application perspective but also because the special techniques can be applied in the two-party setting which do not apply in the multi-party case मीन्स क्या कहता है कि जो टू पार्टी है वो पर्टिकुलर इंटरेस्टिंग टॉपिक है मीन्स जब अगर हम टू पार्टी कंपटीशन की बात करते हैं कि हमें पता है कि इसके अंदर मल्टी पार्टी तो चलता नहीं है लेकिन जो टू पार्टी है इसके भी अपने कुछ फ़ायदे हैं नॉट ओनली फ्रॉम द एप्लीकेशन परस्पेक्टिव केवल एप्लीकेशन परस्पेक्टिव से नहीं बट ऑल्सो बिकॉज
some special techniques can be applied in only in the two party setting. मीन्स कुछ स्पेशल टेक्निक्स हैं जो सिर्फ टू पार्टी कंप्यूटेशन के अंदर लगती है, मल्टी पार्टी के अंदर नहीं लगती. इंडीड सिक्योर मल्टी पार्टी कंप्यूटेशन, in fact the restricted case of the secure multi-party functions evaluations where only a single function is evaluated was the first presented in the two party settings. मीन्स कि जो मल्टी पार्टी के अंदर सिंगल फंक्शन इवेल्युएशन था वो पहले सिर्फ टू पार्टी कंप्यूटेशन के अंदर ही प्रेजेंट किया गया था. द ओनली वर्क इज ओनली ऑफन stated as being one of the two paper of the Yao, although the paper don't actually contains what is now known as garbled Yao's garbled circuit protocol. यही जो हमारे पास था ये Yao's garbled circuit protocol के नाम से जाना गया. Now we will discuss about the multi-party protocol. The most of the MPC protocols are opposed to OPC protocols. जो most of the MPC है मल्टी पार्टी प्रोटोकॉल्स हैं वो अपोज करते हैं टू पीसी टू पार्टी प्रोटोकॉल्स को. ठीक है, टू पीसी को. ओके, तो उसके बाद क्या आता है कि स्पेशली अंडर द अनकंडीशनल सेटिंग ऑफ द प्राइवेट चैनल्स मेकिंग यूज ऑफ द सीक्रेट शेयरिंग्स. जो स्पेशल जो था स्पेशली था अनकंडीशनल सेटिंग ऑफ द प्राइवेट चैनल्स मीन्स जो प्राइवेट चैनल्स हैं सीक्रेट शेयरिंग है उनके लिए मल्टी पार्टी का यूज किया जाता है. इन द सीक्रेट शेयरिंग बेस्ड मेथड द पार्टीज डोंट प्ले स्पेशल रोल्स. जो जैसे कि अगर हम बात करें स्पेशल शेयरिंग की तो उसके अंदर हमारे पास मल्टी पार्टी हो या फिर टू पीसी हो ये कोई मैटर नहीं करता है ज़्यादा. मतलब पार्टी है वो ज़्यादा रोल नहीं करती है एज इन याओज ऑफ द क्रिएटर एंड द इन्वेटर. इन जैसे कि याओ के अंदर में हमारे पास ये जो था सिक्योरिटी पर्पज था वो दोनों के अंदर सेम होता है. इंस्टेड ऑफ द डाटा एसोसिएशन इज वायर इज शेयर ऑलमोस्ट the parties means कि एंड प्रोटोकॉल इज देन यूज टू इवेलुएट द ईच गेट. जो मल्टी पार्टी होता है इसके अंदर हमारे पास गेट्स का यूज किया जाता है जो ईच वायर से कनेक्टेड होता है. द फंक्शन इज नाउ डिफाइंड एज अ सर्किट ओवर ए फाइनाइट फील्ड. जो फंक्शन है वो हमारे पास डिफाइंड यहाँ पे किसके अंदर मल्टी पार्टी के अंदर सर्किट के रूप में किया जाता है और ए फाइनाइट फील्ड एक फाइनाइट फील्ड के अंदर एज अपोज टू द बाइनरी सर्किट यूज फॉर याओ. लेकिन जब अगर हम बात करते हैं याओज पार्टी याओज के अंदर याओज प्रोटोकॉल के अंदर तो उसके अंदर हमारे पास हम सर्किट्स का यूज़ करते हैं ना कि बाइनरी को. मीन्स बाइनरी सर्किट का यूज़ नहीं करते हैं. सच ए सर्किट इज कॉल्ड एज अर्थमेटिक circuit in literature and it is consists to addition multiplication of the gates. मीन्स ये हमारे पास अर्थमेटिक का यूज़ होता है अर्थमेटिक का सर्किट का यूज़ किया जाता है जैसे कि एडिशन हो गया. मीन्स गेट्स का हमारे पास मल्टी पार्टी के प्रोटोकॉल के अंदर यूज़ किया जाता है वेयर द वैल्यू ऑपरेटेड आर डिफाइंड ओवर ए फाइनाइट फील्ड. जो इसकी वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास ऑपरेट की जाती हैं ऑन ए डेफिनेट फील्ड के होता है. द बेनिफिट ऑफ द सिक्योर मल्टी पार्टी कंप्यूटेशन इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं. कॉमर्शली रेडी मीन्स ये कॉमर्शियली रेडी है. टुडे कस्टमर आर यूजिंग द सीक्रेट कंप्यूटिंग टू टू बेट टू बेटर डिटेक्ट द फाइनेंशियल फ्रॉड्स. जो हमारे पास मल्टी पार्टी कम्युनिकेशन है उसका जो कस्टमर्स है वो यूज़ करें किसके लिए फाइनेंशियल फ्रॉड्स को रोकने के लिए. एग्रीगेट मॉडल फीचर्स अक्रॉस द प्राइवेट डाटा सेट्स. बेटर प्रेडिक्ट हेल्थ डिजीज मीन्स हेल्थ डिजीज से बचने के लिए प्राइवेसी के लिए एंड मच मोर और बहुत सारे हैं इसके यूज. चेकआउट आवर यूज केसेस पेज टू लर्न अबाउट मोर ways to data scientists are using the secret multi-party computation. जो most of the scientists हैं वो भी हमारे पास सिक्योर मल्टी पार्टी कंप्यूटेशन का यूज़ करते हैं डाटा को सिक्योर रखने के लिए. computation in production today. No trusted third party see the data. मीन्स इसका मतलब क्या है कि हमारे पास मल्टी पार्टी कम्युनिकेशन हम जब यूज़ करते हैं तो हम किसी भी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व नहीं करते हैं. इट इज़ नो लॉन्गर नेसेसरी टू ट्रस्ट ए थर्ड पार्टी टू कीप द डाटा सेफ एंड द ब्रोकन एक्सचेंज. मीन्स कि हमें कभी भी जो थर्ड पार्टी है उसके ऊपर हम 100% बिलीव नहीं कर सकते कि हमारे पास डाटा
सेफ रहेगा, मतलब चोरी नहीं होगा या फिर गायब नहीं होगा। द क्लाइंट्स नेवर ट्रांसफर डाटा आउटसाइड देयर इंटरनल फायरवॉल्स। Okay, the eliminates trade-off between data usability and data privacy. Data privacy के लिए भी हम इसका यूज करते हैं. There is no need to mask or drop any feature in order to preserve in the privacy of the data. All features may be used in any analysis without compromising privacy. हमारे पास जो हम डाटा देते हैं उसकी मतलब प्राइवेसी होती है, ट्रस्ट होता है, हाई एक्यूरेसी एंड द प्रिसिजन, जो द रिजल्ट्स मीट एंड एक्सीड्स क्लाइंट रिक्वायरमेंट फॉर द एक्यूरेसी एंड द प्रिसिजन। मीन्स जो हमारे पास जो रिजल्ट आते हैं एस एम से पीएमसी से, वो हमारे पास हाईली एक्यूरेट होते हैं और प्रिसाइज इन होते हैं। मीन्स जैसे कि हमने पहले वाले वीडियो के अंदर एक एग्जांपल बताया था सैलरी वाला, तो उसके अंदर हमने एक एग्जांपल के थ्रू बताया भी था कि कैसे उन एक्यूरेसी होती है और डाटा लीक भी नहीं होता है। मीन्स डाटा आपको शेयर भी नहीं करना पड़ता है, फिर भी वो अपने पास डिटेल्स निकाल के दिखाते हैं। तो आप उसका लिंक हमारे पास मैं आपको वीडियो के नीचे दे दूंगा, कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, तो आप उसको देख लेना। Quantum safe data is said to be encrypted in use because broke up it is broke up and distributed across players during the computation, which make it safe against the quantum attacks. जो quantum safe का जो टॉपिक है, मीन्स क्या कहता है कि हमारे पास जो डाटा है वो हमारे पास इनक्रिप्टेड फॉर्म में होगा, उसको मतलब सेफ रखा जाता है ड्यूरिंग द कंप्यूटेशन। मीन्स जो एमपीसी जब हम करते हैं, मल्टी पार्टी कंप्यूटेशन जब हम करते हैं, तो डाटा है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म के अंदर रहता है, विच मेक्स इट सेफ अगेंस्ट द क्वांटम अटैक। तो जो ये है ये हमारे पास उस डाटा को सिक्योर बताता है, मीन्स क्वांटम अटैक से बचाता है। अटैक्स यहाँ पे क्या है, अटैक्स हमारे पास रेफर करते हैं कि डाटा चोरी होना, जैसे कि हमने सैलरी वाले एग्जांपल के अंदर बताया था कि कोई भी हमारे पास प्राइवेसी लीक का डाटा अटैक करता है टू फाइंड द common salary of the employees in that company. Okay, then now we have to discuss about the limitation of the secret multi-party application. As we know, the most every machine has some disadvantages. So the multi-party computation has some disadvantages. First, com- computational overhead. Random number must be generated in order to ensure the security of the computation. Not discussed in the illustrated example above. The random number generation requires computational overhead, which can slow down the runtime. ओके, मीन्स जब जैसे कि क्या कह रहा है, रैंडम नंबर हम जनरेट करते हैं टू इंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ द कंपटीशन। हम जैसे कि हम सिक्योरिटी को टू इंश्योर द सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए हम रैंडम नंबर्स को जनरेट करते हैं। द नंबर जनरेशन रिक्वायर्स कंप्यूटेटेड ओवरहेड विच कैन स्लो योर रन टाइम, स्लो डाउन योर रन टाइम। जो नंबर जनरेशन है वो क्या करता है, टाइम लेता है, रिक्वायर्स कंप्यूटेशनल ओवरहेड लेता है, तो उसकी वजह से हमारे पास जो रन टाइम है सर्वर का वो स्लो हो जाता है। हाई कम्युनिकेशंस cost between the player. Secret sharing involves the communication and the connectivity between all participants, which leads to higher communication cost as compared to the plain text communicate. मीन्स कि जब हम मल्टी पार्टी कंप्यूटेशन करते हैं तो ये थोड़ा कॉस्टली होता है, क्योंकि जो हम मतलब जितने भी हमारे पास प्लेयर्स हैं, प्लेयर्स इन द सेंस जो हमारे पास जिनके साथ हमें शेयर करना है, तो वो हमारे पास थोड़ा कॉस्टली हो जाता है एज कम्पेयर टू द प्लेन टेक्स्ट कंप्यूटेशन। तो ये हमारे पास था, ये हमने पूरा कर दिया है। हमने इंट्रोडक्शन बताया था, सॉरी मैं एक बार पूरा वीडियो को एक बार रिकैप कर देता हूँ कि हमने दोनों वीडियोज़ के अंदर क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले हमने पढ़ा था एमपीसी की जो हिस्ट्री थी कि 1970 के अंदर हमारे पास ये स्टार्ट हुआ था, मतलब इसके अंदर इसके बारे में नॉलेज मिली थी 1970 के अंदर। फिर उसके बाद 82 के अंदर इसको 2 पीसी और 86 के अंदर हमारे पास मल्टी पीसी की हमारे पास डिस्कवरी हुई थी। फिर उसके बाद एज द टाइम पासेस द मल्टी पार्टी सिक्योर मल्टी पार्टी की computation was discovered, and
After 2000 and 2010, the users of the general purpose protocol moved to the secure multi-party competition, and in 2008 it was the first program of the MPC was launched in Denmark in January 2008. After 2014, in 2014, Bitcoin network was organized, which was based on the MPC. And then we have discussed about the secure multi-party computation. uh, okay in this we have taken example of the salary. We have taken example of the group of the friends which want to determine their salary using the MPC. In this we have told that we will use a random number, then we will add the salary of the first company and send to the second one, and then second company will add to the add their salaries, and it will so on up to end companies. And after the at last company, he adds their salary and send to the first one. Now we can detect the difference of the final final salary sent by the nth uh, company, mm, by subtracting the initial value that we have considered as a random number. Then divide divide the difference with the total number of companies, that is n. Then we can find out the average salary of the then we can find out the average salary of the average salary of the employees as per their experience. Okay, this is in this calculation we use MPC. Okay, then we will deep learn of the MPC. Then we will take another example of the DNA of the peoples. Then we will find the DNA of the peoples whose DNA is close to the high effective cancer DNA. Okay, then we have discussed about the Yao based protocol. Yao based protocol is the based on the 2PC, and then we have discussed about the BMR protocols, and then we have discussed about the two-party computation and multi-party computation, and then we have discussed about the advantages or the benefits of the secure multi-party computation, and then limitation of the multi-party computation. That's all from the multi-party computation. And for more videos, please like my video and subscribe my channel. Don't forget to press the bell icon.